Next, a signal which can be green or red with a probability 4 by 5, 1 by 5 respectively is received by station A, then transmitted to a station B. The probability that each station received a signal correctly is 3 by 4. If the signal received at station B is green, then find the probability that the original signal green. Okay, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो. देखो ये जी जीरो मतलब क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन. तो देखो जी जीरो विद द इवेंट दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन and R0 with the event that original signal is a red. We are given initial probability. Probability of G0 equal to 4 by 5 and R0 equal to 1 by 5. यहाँ पे देखो ग्रीन के लिए फाइंड है ना, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन. देखो देखो प्रोबेबिलिटी फॉर विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4 by 5 1 by 5 सिग्नल है ना. ओरिजिनल सिग्नल इज मतलब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन के लिए फाइंड करना. तो अभी देखो GA with the event that station A receives a green signal है ना, and RA with the event that initial probabilities है. RA with the event that station A receives a red signal. So GB with the event that station B receives a red signal and RB with the event that station B receives a red signal. The probability that each station receives a signal correctly is 3 by 4. This means मतलब यहाँ पे 3 by 4 correctly है ना. This means station A received from the original source. The probability of GA or G0 is 3 by 4. A receives green correctly when original is a green. RA or G0 1 minus 3 by 4. That is 1 by 4. है ना. ये कैसे क्या, ये इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 minus that 1 by 4. मतलब A receives red signal incorrectly when original is a green. Next, RA or R0 मतलब 3 by 4. A receives red correctly when original is a red. Then GA or R0 that is A receives green incorrectly when original is a red. ये हो गया पूरा. तो देखो स्टेशन B receive from station A, meaning A receives signal act as a original signal for B. जैसे GB और G 3 by 4. B receives green correctly when A sent green. RB और G मतलब B receives red incorrectly when A sent green. Then RB और RA again 3 by 4. B receives red correctly क्योंकि correctly की probability 3 by 4 है ना. When A sent green. Then G और RB then 1 minus 3 by 1 by 4. B receives green incorrectly when A sent red. We want to find the probability that original signal was a green. And we want to find the probability that original signal was a green. Given that, तो उसके लिए given that क्या किया यहाँ पे. Given that the signal received at station B is green, मतलब this G0 or G, find the probability that original signal was a green. Given that the signal received at station B is a green, मतलब है ना. देखो if the signal received at station B is a green, उसके लिए given condition दिया है. Then find the probability that original signal green. तो station B देखो we want to find the probability that original signal was green. Given the signal received at station B is a green, मतलब ओरिजिनल सिग्नल क्या है G0 और GB, ये आपको फाइंड करना है. सो बेस थ्योरम के हिसाब से G और GB दैट इज इक्वल टू GB और G0 इनटू P ऑफ G0 इनटू P ऑफ GB. वी नीड टू कैलकुलेट इसको कैलकुलेट करना. इसका मीनिंग क्या है, the probability of B receives green given the original signal was green. क्या फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी दैट बी स्टेशन बी है ना, बी रिसीव्स ग्रीन गिवन दैट ओरिजिनल मतलब ये ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन. दिस हैपन्स ए कैन आइदर रिसीव ग्रीन करेक्टली और रेड इनकरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सिग्नल. मतलब रेड ग्रीन करेक्टली एंड रेड इनकरेक्टली. सही है.
तो देखो, this happen A can either receive correctly read from the original signal, तो B receives green from A signal। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, GB और GA कॉमा G0 इंटू P ऑफ GA और G0, GB RA कॉमा G0, RA भी आएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RA कॉमा G0। अभी देखो, since B's reception only depends on what A transmitted, GB और G0 that is GB और GA, एंड जीबी और आर ए कॉमा जी जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी और आर ए। सही है, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज जीबी और जी हो जाएगी, एंड दिस इज जीबी और आर ए। तो जीबी और जी ए कह दिया 3/4, देखो जीबी और जी ए इज 3/4, एंड जीबी जी और जी जीरो 3/4, जीबी और आर ए 1/4, एंड आर ए और जी जीरो 1/4। तो क्या है इसकी 5/10 है। अभी ये इसमें पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जीरो कह दिया ऊपर में, देखो 4/5, एंड नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी का मतलब देखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी, हाँ ये जीबी और जी जीरो, यहाँ पे जीबी और जी जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जीरो, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी निकालें। तो जीबी के लिए देखोगे कैसे निकालेंगे, देखो ये 5/8 तक हो गया था अपना। वी नीड टू कैलकुलेट और जीबी और आर जी, ये फाइंड करना। उसके लिए मतलब ये क्यों फाइंड कर लिया अपन, क्योंकि नीचे अपन को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी। सही है, अभी देखो जीबी ओवर आर जीरो, द प्रोबेबिलिटी दैट बी रिसीव्स ग्रीन गिवन द ओरिजिनल सिग्नल वाज रेड। तो जी ओवर जीबी ओवर जी ए आर और आर जीरो प्लस जीबी ओवर आर ए इंटू आर ए ओवर आर जीरो, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी ओवर आर जीरो। मतलब बी रिसीव्स ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल क्या है, रेड, ओरिजिनल इज आर जीरो, आर जीरो, पूरे इसका सम दैट इज जीबी और आर जीरो। तो पूरे वैल्यू पुट करने के बाद क्या था, 3/8। वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीबी, ये फाइंड करना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी दैट स्टेशन बी रिसीव्स ग्रीन सिग्नल, मतलब जीबी और जी जीरो इंटू जी जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जीरो, एंड जीबी और आर जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जीरो। पुट करने के बाद क्या गया, 23/40। अभी ये पूरा का पूरा पुट करो बेस थ्योरम जो ऊपर में लिखा है, जी जीरो ओवर जी बी, यहाँ पे पुट करो 5/8, इसकी वैल्यू 4/5 और इसकी वैल्यू 23/40। तो फाइनल आंसर क्या गया, 20/23। इसको सॉल्व करने के बाद 40 कैंसिल, 20/23। दिस इज अ फाइनल आंसर। मतलब ये क्या है, दिस इज, ये क्या है, 20/23 क्या दिया है, क्या दिया है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन, बट गिवन क्या है, द सिग्नल रिसीव्ड स्टेशन बी इज ए ग्रीन। मतलब ये गिवन है स्टेशन बी का ग्रीन सिग्नल, एंड किसकी प्रोबेबिलिटी, ओरिजिनल सिग्नल जी जीरो का जी, मतलब इफ वाला गिवन, लेकिन देखो ये original signal was green given that signal received at station B is a green. Final answer is a 20/23. Clear? Next question.